प्रेज लॉर्ड। आइए आराधना के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। पता है आज क्या हुआ था? 40 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन के बाद में यीशु मसीह का वायदा पूरा। पवित्र आत्मा उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे बीच में भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा क्या इस कोरोना की स्थिति में भी आज लोगों के बीच में मंडरा रहा है ताकि किसी का उद्धार करे? अगर हाँ, तो आइए इस आराधना के गीत के साथ अपने हृदयों को तैयार करें ताकि प्रभु परमेश्वर हमारे हृदयों से बात करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू
you for that sacrifice, Lord, and thank you. This amazing gift you are right now giving to us, Lord. That's called the Holy Spirit who is lightening our heart and lightening this world, Lord. Thank you, Lord. Thank you. You step down into the darkness, open my eyes, let me see. Beauty that makes this heart adore you. Hope of our life, strength with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether mighty, altogether wonderful to me. King of all things, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake we came good. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. I've never known how much it costs to see my sins upon that cross. I've never known how much it costs to see my sins upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amazing power right now we are receiving from the word, from this word, Lord, because you would like to dwell in us, Lord. There is amazing power. Yeah, explain, sing. Yeah. Thank you, Lord. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the
दुनिया ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर हमारा देश, हमारा शहर भी पिता परमेश्वर भले ही डर शर्म ग्लानि से घिरा हो, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पिता, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा खुदा है, तू हमारा परमेश्वर है पिता। प्रभु देख मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कर तेरे वचनों के लिए पिता परमेश्वर, मुझसे बातें कर आगे का हर एक समय तेरे हाथों में प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। Praise the Lord everyone. आज के सुबह में आप सभी का स्वागत है। You all are welcome this morning. सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। We will welcome the ones who have joined us for the first time. यदि आप पहली बार देख रहे हैं कृपया करके अपना नाम और फोन नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें, If you are watching us for the first time, write your name and your contact number in the comment box ताकि हम आपसे जुड़ सकें। that we might contact you. कुछ सूचनाएं हैं। So there are some announcements. सूचनाएं इस तरीके से कि सभी बाइबल क्लास और सर्विस जो है ऑनलाइन चल रही है। And announcements are that all Bible classes and services are going online. लीडरशिप क्लास खत्म हो चुकी है पास्टर बीनू की। Pastor Binu's leadership class is over. बाकी जो क्लासेज हैं वो अपने समय के अनुसार रहेगा। आपको समय से क्लास से पहले उसका लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। And the rest classes are going on the way they are, and before the time you'll get the link on WhatsApp. सर्विस भी सब ऑनलाइन पे चल रही है। And service is also online. और यदि आप ऑफरिंग डालना चाहते हैं तो जो नंबर आपको जो अकाउंट डिटेल दिख रहा है उसमें आप अपना ऑफरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। And if you are wanting to give your offering, you can see the details on the screen and you can give your offering. और यदि आपको कोई प्रार्थना या सलाह की जरूरत है तो जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें संपर्क कर सकते हैं पास्टर से। And if you are in need of any prayer request or counseling, you can see the number displayed on the screen. अनाउंसमेंट यही तक है। An announcement after this. और कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So don't forget to subscribe to our channel. आइए प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए और आने वाले मैसेज के लिए। Let's pray for the offering and the coming message. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। Lord, we thank you for this day and the time. हर एक ऑफरिंग देने वाले को आप आशीषित करो पिता परमेश्वर। Bless the one who is giving the offering, Lord. और आने वाले मैसेज के लिए मांगते हैं अनॉइंट करो और आप बातें करो परमेश्वर। And anoint the coming message and you talk through it. आपकी महिमा हो पिता। You might be glorified, Lord. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से In आमीन। Jesus' name, amen. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आए, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से वो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, कर दे बादरा तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
आत्मा तू बना दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तू बना दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपनी बार में चला हमको तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से मेरे से तू अभिषेक कर दे से तू आही बरसाए मेरे से तू पार आए तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से मेरे से तू अभिषेक कर दे आ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा। जय मसीह की सबको। Praise the Lord, everyone. और हमने अद्भुत आराधना की And we did an amazing worship, और अद्भुत समय है and it's an amazing time. और इस सुबह में हम आपका स्वागत करते हैं And we welcome you this morning. और हम देखते हैं इस वचन के साथ शुरुआत करते हैं। And we'll start with this verse. पहला पत्रस का 4 अध्याय 17वीं पंक्ति 1 Peter 4:17. बोलता है क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो, अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। For the time has come for judgment to being at the house of God, and it begins with us first. What will be the end of those who do not obey the gospel of God? और 18वीं पंक्ति बोलता है यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से ही उद्धार प्राप्त करेगा तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी। Verse 18 says, if the righteous one is scarcely saved, where will the ungodly and the sinner appear? और इसलिए वे भी जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं उचित कार्य करते हुए अपने आप के प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंपते हैं। Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. ना यहाँ पे ये वचन कहता है एक मसीह जीवन है जो दुख उठाता है। And here it's talking about a Christian life which bears sorrow. दुख उठाना भी एक परमेश्वर को महिमा देता है। And bearing sorrow glorifies God. जहाँ पे वहाँ पे हम लज्जित नहीं होते। And where we are not shy about it. क्योंकि उसके नाम के लिए हम दुख उठाते हैं। Because we are bearing that for His name. और ये हमारा एक मसीह जीवन है। And this is our Christian life. लेकिन हम भी उस न्याय से गुजरेंगे। And we will also go through that judgment. लेकिन हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। But we will be in front of God. लेकिन परमेश्वर हमारा न्याय हमारे पापों के हिसाब से नहीं करेगा। And God will not judge us according to our sin. ना बल्कि हमारा न्याय हमारे कामों के हिसाब से जो हमारे विवेक हमारी बुद्धि हमारी उसके पीछे की भावना क्या थी उसके हिसाब से करेगा। And He will judge us through our conscience and through the emotions which we are going through. ना जहाँ पे हमने उस हृदय से परमेश्वर की सेवा उसकी आराधना की। Where we glorified God with that heart. ना जहाँ पे वो न्याय किया जाएगा। Where we will be judged. लेकिन सोच सकते हैं कि हम भी मसीह जीवन में उस न्याय से गुजरेंगे। And we can think that we, being a Christian, can go through that judgment. हमने उद्धार पाया है लेकिन हम उस उद्धार के साथ हम उस इनाम को खो देंगे यदि हम उसके अनुसार नहीं चले। We have received salvation, but if we will lose that reward if we will not walk accordingly. लेकिन उस मनुष्य की दशा क्या होगी जो पापी मनुष्य है जो परमेश्वर के बिना उसके सामने खड़ा रहेगा। But what will happen to the person who is standing in front of God without God?
सो हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को, आज के दिन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपका अनुग्रह चाहते हैं हमारे मसीह जीवन में, हमारे इस जीवन में पिता परमेश्वर आपका कार्य, आपकी मदद चाहते हैं प्रभु जी कि हम वो जीवन जी सके जिससे आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके, आपके नाम का प्रचार हो। यही हमारी प्रार्थना है और इस संदेश को प्रचार करने में हमारी मदद करना और हमें इससे सीखने में मदद करना प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो हमने एक अद्भुत आराधना का आनंद उठाया And we have enjoyed our amazing worship. और मैं बहुत उस आराधना में बहुत अच्छा लग रहा था And I was blessed with that songs ना, और जहाँ पे हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं। where we stay in His presence. लेकिन यहाँ पे पहला पत्रस में एक सवाल है, But there is a question in First Peter. उस मनुष्य की दशा क्या होगी जो परमेश्वर के बिना परमेश्वर के सामने खड़ा है, मतलब परमेश्वर पे अविश्वास जिसने किया है। What will happen to the person who is standing in front of God but not keeping faith on Him? ना, क्योंकि उसने अविश्वास के कारण वो उसका भागी होगा Because he had not believed, he will be a partaker of it. ना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने विश्वास से चल रहे हैं And in this world, there are many people who are walking according to their own will. और हम भी इस दुनिया में लोगों के सामने प्रचार करते हैं And today also in this world we preach ना, और बताते हैं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, and we say that Jesus loves you. लेकिन वहाँ पे हर एक वो विश्वास नहीं दिखाता But there that faith is not seen. ना। कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, Many times people mock. कई बार बोलते हैं नरक है कि नहीं और स्वर्ग है कि नहीं, किसको पता है। Who is knowing whether hell is there or not, whether heaven is there or not? लेकिन रियलिटी में देखा जाए कि वो सच का सामना करने से डरते हैं, But in reality, they are getting scared to face the truth. वो उसका प्रति उत्तर देने से डरते हैं They are getting scared to face it. ना। परमेश्वर के न्याय के सामने वो खड़ा रहना नहीं चाहते, They don't want to stand in front of God's judgment. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है But God is faithful. ना। हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है। And we can say that God loves. इवन इस दुनिया में भी हर व्यक्ति उस न्याय से बचने के लिए ये कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। And many times in this world, people want to get saved from that judgment and they say that God is ना, love. परमेश्वर हमें उस प्रेम के कारण स्वर्ग में ले लेगा, And because God is loving Father, He will take us because of that love. लेकिन परमेश्वर का एक गुण है कि परमेश्वर न्यायी भी है And there is an attribute of God that is judgment. और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता भाई, And God never does partiality. और वो अपना न्याय सही तरीके से सटीक तरीके से करता है। And He does His judgment accurately. और ये देखना बहुत अद्भुत है, ये चीजों को सोचना भी हमें कई बार लगता है कि अरे परमेश्वर न्यायी है, And many times it's amazing that we think that God is a judging God. लेकिन वो उसके गुण में संपूर्ण है। But He is complete in His attributes. यस, परमेश्वर प्रेम है, Yes, God is love. लेकिन परमेश्वर एक तरफ न्यायी भी है But in one side, He is a judging God. और ये परमेश्वर का गुण है। And this is God's attribute. और उसका न्यायी होना, वो किसी का पक्षपात नहीं करता वैसे And Him being a judge doesn't make partiality. ना, और जिसमें कोई भी व्यक्ति उसके न्याय से बच नहीं सकता। That no one can be saved with His judgment. जो विश्वास नहीं करता उस पे, The one who doesn't have faith on Him. हर एक को उसका न्याय देना पड़ेगा, Everyone has to bear that judgment. लेकिन उसकी दशा क्या होगी। But what will be the state? लेकिन हम मसीह जीवन में हमारी बातें पता है, And we being a believer, we know our work. हमारा अंत पता है, We know our end. लेकिन एक चीज सोचिएगा But think about one thing. कि उस व्यक्ति की दशा क्या होगी। What will happen to that person? उससे भी परमेश्वर प्रेम रखता है, God loves him. उसे भी परमेश्वर मौका देता है। God gives him a chance. और दूसरी बात ये कि सारे ना, कई बार ये चीजों को कई बार इस दुनिया में लोग सोचते हैं कि ये सारी काल्पनिक चीजें हैं, सिर्फ एक सोच के द्वारा दुनिया के सामने पेश की जाती है। And people think that it's just a myth and it's just because people think and it is present in front of us. लेकिन एक चीज है कि ये बातें जो स्वर्गीय है और जो परमेश्वर की ओर से है, वो इंसान अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता। And the things which are heavenly, people on this earth will not understand. ना वो घमंड के कारण उन सारी चीजों को उस जीवन के द्वारा अपने उस अंधेपन में देख नहीं पाता।
And because of their pride, they are not able to see. चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, Though he is rich or poor, ना चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, whether he is from any caste, चाहे वो एक मसीह क्रिश्चियन परिवार में जन्मा क्यों ना हो, though he took birth in a Christian family, ना ये समझना वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मैं परमेश्वर को उसके प्रेम के द्वारा अपनाऊं नहीं। and it is not possible till I accept him the way God loves. और इस दुनिया में ऐसे लोग हैं And there are people in this world जो अविश्वास का जीवन, उनका परिणाम उस उद्धार को खो देना है where their unfaithful life makes them to lose their salvation. ना, क्योंकि वो अविश्वासी उनके लिए वो दोषी और वो दंड का हकदार बनेगा। Because not being faithful becomes the reason to face that judgment. ना, जो इंसान नरक के होने पर विश्वास नहीं करता, The one who doesn't believe on hell, जो उसका इनकार करता है, who rejects it, क्योंकि वो जानता है कि मैं यदि ना बाइबल के आधारित उस सच्चाई पे विश्वास करूं, because if he thinks that if I believe on the truths based on Bible, तो मुझे अंत के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। then I would have to face the last times. क्योंकि इब्रानियों का 9:27 क्या बोलता है? Because Hebrews 9:27 says, इब्रानियों का 9:27 Hebrews 9:27, बोलता है मनुष्य का क्या है? 9:27 ओके। और जैसे मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. ना वो क्या है? परमेश्वर ने ना बाइबल में लिखा है, And it is written in the Bible. ना एक मनुष्य का उस न्याय के लिए नियुक्त किया गया है मनुष्य का। And judgment is appointed for man. ना जो क्या है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। And he has to die once, and after that the judgment. ना, और उसे कई बार देख सकते हैं उन चीजों को कि बाइबल कुछ बातों पे विश्वास हम करते हैं, बाइबल के बातों पे विश्वास करते हैं। And many times we believe on some things on Bible, हाँ, लेकिन वो कुछ हिसाब से सही होगी, but it might be somewhat real. लेकिन हम विश्वासी इस बाइबल को पूरी तरह से विश्वास करते हैं But we believer have faith on this Bible completely, और उसके क्रूस का प्रचार करते हैं। and we preach about His cross. लेकिन हम ये जानते हुए कि क्यों हम ऐसा करते हैं, And knowing why we do this, ना क्यों इन चीजों को लोग नहीं समझते, why people don't understand these things. ना, क्योंकि उनके पास वो परमेश्वर का उस सोच के साथ जीने का वो सोर्स नहीं है, Because they are not having the source to think with God, ना उनके पास वो पवित्र आत्मा नहीं है and they are not having that Holy Spirit, और वो विश्वास नहीं करना चाहते, and they don't want to believe, ना वो चाहते हैं उनको सामना नहीं करना चाहते, and they don't want to face, ना उन चीजों को उस जो भविष्यवाणियां हैं उनको झूठा ठहराते हैं, and they prove the prophecies false. ना और अपने जीवन की शैली को अपनाते हैं। ना मैं एक चीज लिख रहा था, And I was writing something. बताए वो अपने जीवन शैली को मतलब मसीह के जीवन शैली को तो अपनाते हैं, And they accept the way of God's living, लेकिन यीशु मसीह के जीवन को नहीं अपनाते, but they don't accept God's life. ना वो यीशु मसीह की तरह प्रार्थना और वो जीवन तो उसका आदर्श बनाते हैं, And they get motivated through God, through Jesus' prayer. ना जीवन का मतलब यीशु मसीह ने जो जीवन जिया उसका आदर्श बनाते हैं, वो कैसे चलता था, कैसे जीता था, कैसे वो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलता था। And they make Jesus' life as their motives, the way he used to walk, the way he used to talk. और लेकिन उस पुत्र के पिता के आज्ञा पालन का जीवन नहीं स्वीकारते, But they don't accept the obedience of his father. मतलब मैं व्यवस्था और प्रतिदिन के नियमों का तो पालन करूंगा, Where it says that I will obey the laws of daily routine, लेकिन मैं उस पुत्र को जो परमेश्वर से प्रेम रखता था, उसकी आज्ञा मानता था, उस बातों को नहीं अपनाऊंगा। but I will not obey the son who is loving his father. क्योंकि बाइबल हमें परमेश्वर के आज्ञा पालन में जीना सिखाती है, Because Bible teaches us to live in obedience. और वही उस व्यवस्था को पूरा करती है, And this only completes that law. क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना और पड़ोसी से प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करने के जैसा है।
and it is complete when we love our neighbor and love our God. और बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर के प्रकाशन को बताती है। And from the starting till the end, it represents God's revelation. और बाइबल परमेश्वर का मन, उसकी सोच, उसका प्रेम है। And Bible is His love, His thinking. जो हमें उसके साथ बातें करना, उसके साथ उन चीजों को जीना सिखाती है। Where it teaches us to walk and to talk with Him. और उसका प्रकाशन ऐसा है। And its revelation is. अगर उत्पत्ति का पहला अध्याय देखें तो सृष्टि का निर्माण है। And if we see Genesis 1, we see the creation of this world. लेकिन उत्पत्ति के 3 में आते आते क्या होता है कि आदम और हव्वा पाप में पड़ते हैं। But what happens when we come to chapter 3? Adam and Eve sin. लेकिन वहाँ पे भी परमेश्वर का प्रावधान है। But there also there is a provision of God. वहाँ पे भी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने मेमने को क्या है मारा और उसके चमड़े के कपड़े पहनाए। And there also God killed a lamb and He made clothes for them. और हर सभी इस इंसानी जाति के लिए एक प्रावधान बनाया है। And He made a provision for the whole human race. ना जो एक स्त्री का बीज तेरे सिर को कुचलेगा। Where the seed of the woman will quench your head. जो पाप का स्रोत है शैतान, जिसने इस दुनिया में आदम और हव्वा के अंदर उस पाप को क्या है पाप को लेकर आया। And the source of sin, which is Satan, brought sin through Adam and Eve in this world. लेकिन परमेश्वर ने प्रावधान बनाया। But God made a provision. पुराने नियम में In Old Testament, परमेश्वर की योजना है। there is God's provision. और नए नियम में And in New Testament, परमेश्वर का संपूर्ण कार्य है। there is a complete work of God. और यूहन्ना का पहला अध्याय वही बताता है। And John 1 speaks about it. राइट, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के साथ था। And in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. So the Word was with Him. और वचन देहधारी हुआ। And Word took flesh. और वो इस दुनिया में ना निवास किया। And it stayed in this world. और उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक लौते पिता के पुत्र की महिमा। And we saw His glory as the glory of His Father. और वही वचन जो देहधारी हुआ उसने बातें की हमसे। And the Word which took flesh talked to us. हाँ, यूहन्ना का 14 में बोलता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। And John 14 says that I am the way, the truth, and the life. ना जो मेरे बिना पिता के पास कोई पहुँच नहीं सकता। No one can go towards God without me. लेकिन आखिरी चीज ना इस बाइबल की जो प्रकाशित वाक्य है, And the last book, which is Revelation, जहाँ पे 4थे अध्याय तक मसीह जीवन का एक मार्ग है और उसका यीशु मसीह के आने का और रैप्चर का एक क्या बोलते हैं उस दिन तक का एक चित्र है। when till the 4th chapter we see a picture of Jesus coming, ना जहाँ पे हम उस पे विश्वास करते हैं, where we believe on Him. लेकिन उसके बाद वो प्रकाशन है। And after that, Revelation starts. लेकिन प्रकाशित वाक्य का 20 में क्या लिखा है, But what is written in Revelation 20? हम उसमें जाके पढ़ते हैं। We'll read that, बहुत अच्छा है and it's beautiful. क्योंकि उस व्यक्ति का अंत क्या है And what is the end of that man? ना, वहाँ पे जो श्वेत सिंहासन का न्याय है Where the white throne judgment is seen. ना, जहाँ पे उसके कामों के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा Where he will be judged through his works. ना, वो अविश्वासियों का न्याय And that unbeliever's judgment. ना, ये सोचना बहुत दर्द होता है, right? And it's painful when we think. लेकिन क्या उस व्यक्ति की दशा But what will happen to its state? जिसने यीशु मसीह पे अविश्वास दिखाया Who showed unbelief towards God और उस न्याय का भागी बना, and became a partaker of that judgment. जिसमें यीशु मसीह ने वो प्रावधान दिया हर इंसानी जाति के लिए। Where Jesus gave a provision to every human race. वहाँ पे एक पंक्ति लिखती है 20वीं अध्याय की, And there is a verse in chapter 20, 20 की 13वीं पंक्ति। 20 verse 13. वहाँ पे बोलते समुद्र ने उन मृतकों को जिसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने अपने मृतक दे दिए, उनमें से प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यही आग की झील दूसरी मृत्यु है, जिसकी किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया। The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead up who were in them,
and they were judged, each one according to his work. The death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life who was cast in the lake of fire. ना यहाँ पे आग की झील है, And there we see a lake of fire. यहाँ पे एक दूसरी मृत्यु है Here there is a second death. ना, यहाँ पे उन लोगों का न्याय है And we see the judgment, जो उनके कामों का अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, where they will be judged according to their works. और वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। And they will be put in lake of fire. अगर नरक की कल्पना करते हैं And if we imagine hell, तो वहाँ पे ये आग की झील है, there this lake of fire is. जहाँ पे अनंत की आग जलती हुई दिखेगी, Where we see an eternal fire burning. जहाँ पे अनंत का वो नरक का वो वातावरण होगा। Where there will be an eternal fire and an environment about it. जब हम आग में एक उंगली नहीं डाल सकते Where we can't put a finger in that fire. तो कैसे हम उस आग की झील में जाना चाहेंगे? How will we want to go in that lake of fire? सोचो वो आग की झील क्यों है? Think that why is this lake of fire there? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाई है, Yes, God has not made that for us. नहीं तो यीशु मसीह क्यों आता? Otherwise, why would have Jesus come? यीशु मसीह हमारे लिए आया है, Jesus came for us. और वो आग की झील हमारे लिए नहीं है, And that lake of fire is not for us. लेकिन उनके लिए है जो उस पे अविश्वास दिखाएंगे। But it's for them who shows unbelief towards God. परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, God is a judging God. वो किसी का पक्षपात नहीं करता। He will not do partiality. एक चीज है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, There is one thing that God loves us. इसलिए वो आग की झील में जाने से पहले हमें एक मौका देता है। That's why He gives an opportunity before going in that lake of fire. हमारे हर एक जीवन के हिस्से को वो एक मौका देता है। In every part of our life, He gives an opportunity. ये सिर्फ वो अविश्वासी के लिए नहीं है, It's not only for the unbeliever. लेकिन हम विश्वासियों के लिए भी वो मौका है कि हम भी उसके प्रेम, उसके मसीह जीवन को विश्वास योग्यता से जी सके। And it's for us believers that we can live His love and a Christian life. ना कल पास्टर शिबेली बोल रहे थे, Yesterday, Pastor Shibeli was speaking. हम विश्वास योग्य नहीं हो सकते, We cannot be faithful. लेकिन हम उस विश्वास योग्य परमेश्वर को जब स्वीकार करते हैं तो हम विश्वास योग्य जीवन जी सकते हैं। But when we accept that faithful God, we can live a faithful life. एक अनुग्रह का व्यक्ति उसके विश्वास योग्यता, उसके प्रेम को जीवन जीता है, A gracious man can live his faithful life. और यही हमारे लिए भी है, And this is for us. और हम उस जीवन को दूसरों को दे सके। And we can give the same life to another person. लेकिन सोचो वो आग की झील But think about that lake of जहाँ fire, पे अनंत का अंत है, where there is eternity, जहाँ पे सारी पृथ्वी की बुराइयों का अंत है, where it is the end of all evil doings, जिसका न्याय किया जाएगा, which will be judged. जहाँ पे उस आग की झील क्या कहती है, Where that lake of fire, what it says, वो पाप के स्वभाव की मांग करती है बहन में, it is in want of sinful nature. क्योंकि पाप का स्वभाव, पापी जीवन उस आग की झील का हिस्सा है, Because sinful character is a part of that lake of fire. क्योंकि वो हमेशा उसके साथ उस न्याय में डाल दिया जाएगा। Because always it will be put in that judgment. ना अगर यमुना का 3:16 से 18 पढ़ते हैं, And if we read John 3:16 to 18, मैं हमेशा 3:16 पढ़ता था, I always used to read 3:16, और उसके आगे भी हम जब देखते हैं and ahead when we see, तो परमेश्वर ने उन चीजों को कहा है। and God said those things. ना कहता है कि 3:16 का 18 में, 3:16 to 18, लेकिन उसके पहले 17वीं पंक्ति है but before that there's verse 17. ना, परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि वो किसी का न्याय करे, किसी को दोषी ठहराए, For God did not send His Son into the world to condemn the world, बल्कि इसलिए भेजा कि वो जगत का उद्धार करे। but that the world through Him might be saved. सोचो ये चीज है, This is the thing. लेकिन 18वें में हर एक व्यक्ति के लिए एक बात है, But in verse 18 there's a word for everyone. बोलता है जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, He who believes in Him is not condemned, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, but he who does not believes is already condemned, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. ना परमेश्वर जैसे न्यायी है,
And God, as He is a judging God, और उसकी धर्मीपन के आगे कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा, and before His righteousness, no one is able to stand. और वो एक सच्चाई इस दुनिया में है, And He is a truth in this world. और वो यीशु मसीह का जीवन, And that is the life of Jesus. यीशु मसीह का क्रूस, Jesus' cross, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। Jesus' resurrection. ना क्रूस जो है, परमेश्वर ने सारे पापों का दंड उस क्रूस पे ले लिया। And Jesus took the penalty of all sin on that cross. ना और पुनरुत्थान का जीवन दे लेकर ये बताया कि उस मृत्यु को उसने हरा दिया। And taking that resurrected life, He showed that He has conquered on death. ना लेकिन संसार में इस प्रचार का ठट्टा उड़ाया जाता है कई बार। But the world mocks this truth. ना लोग कहते हैं ना कैसा जीवन जीते हैं। इसी जीवन में कई बार हम अपने करीबी लोगों से भी इन चीजों से गुजरते हैं। And we go through this in this world. लेकिन हम मसीह है तो मसीह है। And because we are Christian, we are Christian. लेकिन वो मसीह जीवन क्या जो मसीह के बिना जिया जाएगा? And what is that life? What is that Christian life which is not with Christ? क्योंकि मसीह जीवन ही ये बताता है कि हम रविवार की आराधना क्यों करते हैं। And a Christian life tells why we worship on Sunday. क्यों हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। Why we believe on Jesus. हम कितना परमेश्वर को प्रेम करते हैं। How much we love God. जब ये मसीह जीवन हम जीते हैं। When we live this Christian life. वो दूसरों को भी यही बताता है। It tells other ones also about the same thing. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Because God loves you. और हम उनकी चिंता करते हैं। And we take care about it. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for them. हम उन लोगों को जाके यीशु मसीह को बताते हैं। And we tell people about Him. क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस इसलिए दिया गया Because Jesus' cross was given for ताकि हम पाप के दासत्व से छुड़ाया जा सके। that we might be saved from the servanthood of sin. ना मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ। I always tell this story. ना एक भाई जो गुनाहगार था। And there were two brothers, and one was offensive. और उससे एक दिन गलती हो गई, उसने गुनाह किया और खून हो गया उसके हाथों। And he did an offense, and he murdered someone. उसके भाई के पास जब आया क्योंकि उसको पकड़ने वाले थे। And he came near his brother because he was about to get caught. और उस भाई ने अपने कमीज को निकाला, उसको पहनाया क्योंकि उसकी कमीज लहू से भरी थी। And that brother removed his clothes and gave it to the brother which did that murder because his clothes were filled with blood. और उसके भाई की सजा उसने अपने ऊपर ली। And he took the judgment of his brother on himself. और यही चीज दिखती है कि परमेश्वर का प्रेम दिखाता है। And this only shows that love of God. वो क्रूस पे उसने वैसा ही किया He did the same on the cross. कि उसने हमारे बदले में वो सजा ली। He took that judgment for us. और जब भी हम उसके पास जाते हैं, And whenever we go towards Him, उसकी धार्मिकता, उसका पवित्र जीवन हमें मिलता है। His righteousness and His holy life is given to us. हम उसके सामने खड़े रह सके। We can stand in front of Him. और यही चीज है कि इस दुनिया में वो न्याय करेगा। And this is the same thing that He will judge in this world. जो उसके पुत्र को इनकार करेगा, The ones who show unbelief towards His Son. उसको वो वहाँ पे इनकार करेगा। And He will reject them. और यही चीज है कि वो मेमने की किताब में उसका नाम लिखा जाएगा जो उस पे विश्वास करेगा। And His name will be written in the book of the Lamb who will believe on Him. इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखता है कि उस जीवन की किताब में जिसका नाम नहीं होगा वो उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। That's why in Revelation it is written that the names which are not written in the book of Lamb, they will be thrown in the lake of fire. यदि कोई अंतिम सांसें गिन रहा होगा, If there is someone who is counting the last breath, क्योंकि ये कोरोना का ऐसा समय चल रहा है because of this corona time, ना, हम नहीं जानते किसकी मौत कब आएगी। we don't know whose death will come when. हम नहीं जानते कब कैसे कौन उस मौत को सामने चला जाएगा। We don't know who will face that death, when will they face. लेकिन एक मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। But one thing I would like to tell, एक जीवन है जो यीशु मसीह का, जो अनंत के उस जीवन में आपको पहुंचा सकता है। there is one life which can
lead you towards that eternal life. इसलिए हम ये प्रचार करते हैं That's why we preach, ताकि उस आग की झील में आप ना जा सको, that you might not go in that lake of fire. आपकी आखिरी सांसें उस दूसरी मृत्यु का कारण ना बने, Your last breath should not become the reason of your second death, बल्कि वो अनंत जीवन का हिस्सा बन जाए, but that it would be a part of your eternal life यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा। through Jesus' belief. और ये बहुत ही हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा, And it's that part of life which we will receive through God. और इस दुनिया में सारे विश्वासियों का हृदय भी ऐसे ही होना चाहिए And in this world, everyone's heart must be like that. ना। आप अपना जो अंत है वो हमेशा हम सोचते हैं, Our end, we think about it, तो हमें उन दूसरों का भी अंत दिखाई देगा। and we will see someone else's end also. हम स्वर्ग जा रहे हैं, We are going in heaven. क्या हम सेल्फिश है? Are we selfish? क्या हम प्रचार नहीं करना चाहते? We don't want to preach, क्या हम नहीं बताना चाहते? or we don't want to tell anyone. चलो ठीक है, मैंने पा लिया, Yes, it's okay, I received it. लेकिन उनके लिए वो स्वर्ग का प्रावधान हमारी ओर से परमेश्वर ने दिया है But God has given that provision through us for them, ना, जहाँ पे हमारे पास वो यीशु मसीह है where we have that Jesus, ना, जहाँ पे हम उसके साथ जीते हैं। where we live with Him. हमारे मसीह जीवन का वो क्या है, जीने का कारण ही है कि हम उनकी चिंता करें, And we living as a Christian is the reason why we have to care about them, ना हम किसी को शेयर करें। that we might share about it. मैं इस हफ्ते सोच रहा था, I was thinking in this week, हम आउटरीच प्रचार करना और प्रार्थना करना बहुत ना कम हो गया है, and we sharing gospel and praying is becoming less. लेकिन प्रार्थना हम करते हैं, Yes, we pray, लेकिन क्या हम प्रचार करते हैं? but are we preaching? क्या हमने किसी को बताया? Did we preach to anyone? ना किसी के अंत को सोचो, Think about someone's end. उस अंत को जो वो पाप के द्वारा आग की झील में डाला जाएगा That end which will, because of sin, which will be put in that lake of ना। fire. प्रचार के तरीके बदल सकते हैं Preaching style can be different. ना, जो यीशु मसीह का सुसमाचार बांटना का तरीका बदल सकता है, And the style of sharing the gospel can change, लेकिन सुसमाचार नहीं बदलेगा। but the gospel will not change. सुसमाचार हमेशा उस जीवन की बात करेगा That gospel will always speak about the life. ना। कई बार ये चीजें हमारे अंदर है, Many times these things are in us. तो उसे बाहर निकालो, किसी को इस सप्ताह या कहीं पर भी उस सुसमाचार को सुना, Remove it out and preach it to someone else throughout this week. क्योंकि इस लॉकडाउन में हम स्ट्रीट पे नहीं जा सकते कई बार, Because in this lockdown we can't go on the streets, लेकिन हम कहीं ना कहीं पे तो खड़े रहते हैं, but some or the other way we stand on it. वहाँ पे उसका प्रचार करो, There preach about it. दोस्तों के बीच में, In midst of friends, रिश्तों के बीच में, in middle of relationships, और हर जगह पे and everywhere. ना। कई बार हमारी गलतियाँ कई बार दूसरों को परमेश्वर से दूर ले जा सकती है, And many times our mistake can take someone else away from God. लेकिन हमारा मसीह जीवन दूसरों को परमेश्वर के पास लेकर आ सकता है। But our Christian life can bring someone closer to God. हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम दूसरों के लिए प्रेम उत्पन्न कर सकता है। Our love towards our God can bring love in someone else. हमारी प्रार्थना का जीवन दूसरों के लिए वो सामर्थ का काम कर सकता है, Our prayer life can be strength in someone else's life. और हमारा सुसमाचार का जीवन दूसरों को अनंत के उस जीवन का हिस्सेदार बना सकता है And our gospel life can become a reason of someone else's eternal life. ना। कई बार लोग कहते हैं क्यों प्रचार कर रहे हो, इस चीज का प्रचार मत करो, राइट, रोकते हैं कई बार। And many times people tell us to stop preaching, and they ask us why are you preaching? लेकिन क्या हमें रुकना है? But we have to stop, नहीं, हम उसका पालन करते हैं जो यीशु मसीह ने आदेश दिया है, and we obey the sayings which is through Jesus, जो हमें यीशु मसीह ने वादे दिए हैं, which is promised through Jesus, और वो प्रचार हमें करने का आदेश दिया है। and we have been given that preaching, और यीशु मसीह हमारे जीवन का वो हिस्सा चाहता है,
And Jesus wants that part from our life. कि हम जैसे उससे प्रेम रखते हैं वैसे लोगों की चिंता भी करें। And as we love Him, we should take care about people. हम कलीसिया है We are a church, और हम बाहर बुलाए गए लोग हैं, and we are called out once. हम बुलाए गए लोग हैं We are called out, और हम रखे गए हैं and we are kept, कि ताकि हम यीशु मसीह को प्रचार करें। that we might preach Jesus. मत्ती का 20:18-20 Matthew 20:18, ना जहाँ पे बोलता है जाओ जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, हर where एक it says that preach about my name. ना जाओ जाकर ना उनको प्रचार करो, Go and preach about it, उन्हें चेला बनो। and make और disciples. यही चीज है जो हमारे हिस्से की है। And this is the same thing which is of our part. लेकिन उनकी दशा क्या होगी हम देख सकते हैं And we will see what their state will be. ना। हम इस दुनिया में है, हम मसीह को स्वीकार करने वाले लोग हैं We are in this world and we are the people receiving God. ना कोई तो सुनेगा, Some or the other person will listen. ना कोई उस सुसमाचार को स्वीकार करेगा। Someone will listen. हमारे पास वो मसीह जीवन है। We have that Christian life. पहला यूहन्ना का 5:12 क्या कहता है? 1 John 5:12 says, बोलता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, the one who has the son has the life. जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। The one who doesn't have the son is not having that life. लेकिन क्या हम इससे घमंड करें? Or should we be proud of it? हाँ मेरे पास पुत्र है, मेरे पास जीवन है, Yes, I am having that son, I am having that life. लेकिन उसके पास जिसके पास पुत्र नहीं उसे भी वो पुत्र मिले And or to bother the person who is not having that son. ना। यही हमारे लिए सोचना हमारा मसीह जीवन है And thinking this only is our Christian life. ना। हमारी आवश्यकता है, हमारे जरूरतों को वो पूरा करता है And He fulfills our wants. और जिनके पास ये जरूरत है उसकी भी जरूरतें वो पूरा कर सकता है And the ones who are in need, God can fulfill them. ना। परमेश्वर जो हम सबसे प्रेम रखता है God who keeps love with everyone. वो नहीं चाहता कि अविश्वास करके हमेशा के लिए वो लोग नरक जाए। And He doesn't want us to show unbelief towards Him and go in that lake of fire. बाइबल हमें ये नरक के बारे में बताती है And Bible speaks about that hell. ना। हमारे उस दूसरी मृत्यु उस जो अविश्वास में है उनकी दूसरी मृत्यु को बारे में बताती है And the ones who are still unbelieving, it talks about their second death, ना, जहाँ पे वो आग की झील में डाले जाएंगे where they will be put in the lake of fire. ना। पहला वो उस शरीर में एक शारीरिक मौत है First, it will be a physical death, जो इस धरती पे हम जो जीवन जीते उसके बाद एक मौत होगी which we live in this world and we will die once. ना। हम इस शरीर से उस प्राण से ना अलग कर दिए जाएंगे And we will be separated, body and soul. और दूसरी मौत है जो विश्वास नहीं करते उनकी, And the second death is the ones who are not faithful, जिसने यीशु मसीह का इनकार किया who rejected Jesus. ना। बाय द वे 3 मौतें There are 3 deaths इस दुनिया में। in this world. एक है शारीरिक मौत First is physical death. और दूसरी है आत्मिक मौत Second is spiritual death. और तीसरी है जो दूसरी और अंतिम मौत And the third, which is the second and the last one. ना। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए ये जगह है And it's for the ones who are not believing, ना, जो हमेशा के लिए उस अनंत की मृत्यु में डाले जाएंगे who will be forever kept in that death. हाँ। लूका के 16 में अच्छी एक घटना है, सच्चाई, वो दृष्टांत नहीं, वो सच्ची घटना यीशु मसीह बता रहा है। And in Luke 16, it's not a parable, it's a truth. It's a truth ना, जो यीशु मसीह उसका वर्णन कर रहा है where Jesus is explaining about it. जब मैं पढ़ रहा था मतलब उसमें पीड़ा के बारे में लिखा है And when I was reading, it is written about that pain. ना। 2 व्यक्तियों का जिक्र करता है It talks about 2 persons. ना। एक धनवान व्यक्ति है जो मलमल के वस्त्र पहने हुए बहुत ना अच्छे ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा है। One who is a rich person wearing cotton clothes. और दूसरा व्यक्ति है लाजर नामक जो उसको उसकी टेवड़ी पे छोड़ा दिया जाता है। And there is a second person which is named Lazarus who is kept on its footstool. हर दिन उस घर के सामने उसके टुकड़ों पे वो जीता है And where he is living with the breadcrumbs. ना। जहाँ तक मतलब बोलता है यहाँ तक कि उसके घाव भी वो कुत्ते आकर चाटते हैं। Where his wounds are licked by dogs. सोच सकते हैं कैसा जीवन जी रहा है। We can think how that life is. लेकिन दोनों एक दिन दोनों की मौत होती है। And both die one day. हाँ। जो लाजर है वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाता है।
and the Lazarus is kept in the bosom of Abraham. लेकिन जब धनवान मौत मरता है But when the rich person dies, तो वो जब आंखें खोलता है when he opens his eyes, ना, वहाँ पे हम उस घटना को पढ़ेंगे we'll read that ना, क्योंकि ये सच्चाई है भाई। because it's a truth. ये अनंत की वो सच्चाई जो हर एक इंसान नहीं चाहेगा कि उसका सामना करे It's an eternal truth where human race will not want to face it. ना। लूका का अध्याय 16 आई थिंक सो, Luke 16. 16, हाँ 16, वहाँ पे हम पढ़ते हैं And when we read, बोलता है 23वीं पंक्ति, verse 23, बोलता है तब अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा जिसकी गोद में लाजर था। and being tormented in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. हाँ, जहाँ पे वो व्यक्ति क्या है, जब देखा उसने तो अब्राहम से विनती कर रहा है। And when he saw, he is requesting Abraham. बोलता है लाजर को भेज ताकि वो उस उंगली को पानी में डाल के मेरे जीभ पे रखे ताकि मेरी जो ज्वाला की तड़प है वो कम हो सके। Send Lazarus that he might dip the tip of his finger in the water and cool my tongue. सोच सकते हैं And we can think, वो ज्वाला में पड़ा हुआ तड़प रहा है, and he is suffering in that fire. लेकिन वो ऊपर आंखें उठाकर देखता है कि अब्राहम की गोद में लाजर है। And he lifted up his eyes and he sees that in the bosom of Abraham, Lazarus is there. वो बोलता है उसे भेज। He is saying that send him. मतलब क्या देख रहे हो? What is he seeing? लाजर का वो जीवन जो बदला हुआ है, That Lazarus' life which is changed. लेकिन वहाँ पे वो अपनी तड़प का जिक्र कर रहा है। But there he is mentioning about his sorrow. वो बोलता है कि उस पानी में वो उंगली डालेगा और मेरे जीभ पे रखेगा तो मेरी वो तड़प कम हो जाएगी। And if he'll dip his finger in water and he will make a cool feeling in his tongue. ना, जहाँ पे देख सकते हैं पानी और आग में बहुत अंतर ना, विरोधाभास है। And where we see there is it's controversial that water and fire. ना, उसे उस तड़पती हुई ज्वाला में पानी की जरूरत है। And he needs water in that fire. लेकिन क्या है, एक बार मनुष्य का मरना, राइट, मरने के बाद उसका न्याय होना नियुक्त कर दिया गया है। But it is appointed for man once to die and then judgment. ना, वहाँ पे आगे लिखता है वो चाहकर भी इस दीवार को, इस जो डाली हुई इस दरार को जोड़ नहीं सकता। And if he wants also, he will not join it. ना, यहाँ से वहाँ कोई जा नहीं सकता। No one can go ahead of it. ना, और इब्राहिम कहता है स्मरण किए कर। And Abraham says that remember. ना, स्मरण करके तुम कौन सा जीवन जी रहे थे। And remember the life which you are living. ना, अभी लाजर शांति का जीवन जी रहा है, And Lazarus is living a life of peace. लेकिन तू में तड़प रहा है। But you are suffering. ना, 4 बार उस पीड़ा का जिक्र करता है। And there it mentions 4 times. ना, यहाँ पे समझने वाली बात है। And it's a thing to understand. बोलता है स्मरण कर, Remember. याद कर। Remember. मतलब क्या कर रहा है, तू याद कर सकता है वहाँ पे। And what is it saying? That it's saying that you can remember in that उसके place. विवेक में, उसके उस चेतना में वो समझ सकता है कि वो कैसा था और आज कौन सी जिंदगी में है। And in his conscience, he can understand that what his life was and now what life he is going through. राइट, और अगर देखते हैं 26वीं पंक्ति, And if we see verse 26, अब इब्राहिम जब उससे बोलता है कि इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अथाह खाई निर्धारित की गई है, यहाँ से यदि कोई उस पार जाना भी चाहे तो न जा सके और वहाँ से यदि कोई इस पार आना भी चाहे तो न आ सके। and besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. ना, जहाँ पे उसके आगे दिखता है कि अभी कोई रास्ता नहीं है, Where ahead we see that there is no way, तो वो दूसरा रास्ता बोल रहा है। and he is talking about another way. बोलता है किसी को भेज नीचे चेतावनी देने के लिए, मेरे और भी भाई है And send someone down there. I am having more brothers. ना, उनको चेतावनी दे ताकि वो इस पीड़ा के स्थान में ना आ सके। They might warn them and they might not go through this suffering. ना, वो अभी मार्ग बता रहा है।
he is showing a way. क्यों? क्योंकि उसको पता है जो मेरा हिस्सा है, जो मैंने किया है, मैंने जिया है, और उस अविश्वास के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। Because he knows the life which he lived, and because of that unfaithful life, he is in this state. क्योंकि वो अपने चीजों पे घमंड कर रहा था, उस जिंदगी को जो ऐशो आराम की थी, Because he was proud of the life which he was living, which was resting, ना जहाँ पे वो किसी की भी उसको जरूरत नहीं थी। where he was not in want of anyone. लेकिन अभी वो चाहता है कि उसके भाई परमेश्वर को जाने। But now he wants his brother to know God. लेकिन इब्राहिम क्या बोलता है? But what does Abraham say? यदि मूसा और उसके नबी भी वहां पे जाए, उनकी नहीं सुना, तो वो जो मरे हुए में से जो जीवित होकर जाएगा, तो वो कैसे उसकी सुनेंगे? If they did not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rise from the dead. ना यहाँ पे मूसा की बात कर रहा है, नबियों की बात कर रहा है। Here it talks about Moses and prophets. ना वहाँ पे वो जीवन की बात कर रहा है जो परमेश्वर के साथ चलना है। When he is talking about that life which is walking with God. क्योंकि वो जानता है उस जगह पे उसका न्याय करने के बाद जो उस ज्वाला की तड़प में जीने वाला जीवन है, किस वजह से उसे मिला है। And he knows the reason behind his current life, where he is bearing that pain in fire. ना जहाँ पे हर एक का न्याय किया जाएगा, Where everyone will be judged उसके कामों के अनुसार। according to their works. ना हमारे अच्छे काम, अच्छे कार्य कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, Our good works can never please God, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। but our faith can please God. ना परमेश्वर को विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। And it's impossible to please God without faith. ना सिर्फ विश्वास के द्वारा ही वो प्रसन्न होता है। He will be pleased only with faith. और एक ही है जो हमारे इस निर्णय को बदलेगा। And it's only one thing which will change our decision. ना एक निर्णय जो हमेशा के लिए हमारे उस अनंत के उस डेस्टिनेशन को, उस अनंत के उस स्थान को बदल देगा। One decision can change our destination and our end, ना जो है यीशु मसीह पे विश्वास। which is to believe in Jesus. यदि आप उस जगह पे हो, If you are in that place, एक ही चीज यीशु मसीह कहता है। one thing Jesus says, ना इस जीवन में बोलता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। but in this world he says that if you are filled with burden, give me that burden. और बोलता है जो कोई भी जीवित है, यदि कोई मुझ पे विश्वास रखता है, वो अनंत में भी अनंत जीवन को उसको मिलेगा। And the one who believes on me will have an eternal life. ना जो उस जीवन को पा सकता है, Who will receive that everlasting life. और वो सिर्फ अनुग्रह के वजह से है। And it's only because of grace. ना इफिसियों का 2 अध्याय कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार होगा। And Ephesians it says that by faith through grace you have been saved. तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है, And it's not because of your work. क्योंकि परमेश्वर के सामने वो ऐसे कार्य गंदे मैले चितड़े के समान है। Because the good works are like filthy rags in front of God. ना जहाँ पे हम किसी भी उस साबुन से उन पापों को धो नहीं सकते, Where no soap can clean it. ना जहाँ पे एक ही है जो उसे शुद्ध और साफ कर सकता है। There is only one thing which will clean it. यीशु मसीह का क्रूस पे उस लहू का बहना, And Jesus' flowing blood. ना वो यीशु मसीह जिसने क्रूस पे काम पूरा किया, That Jesus who completed that work. ना ये स्थिति, ये हालात पल भर की है, And the situations will not last long. क्लेश पल भर का है, And the tribulation will not last long. तकलीफ थोड़े समय की है, And trouble is for a time. लेकिन वही क्लेश, वही पीड़ा, वही तकलीफ हमेशा की नहीं बनेगी। And that only trouble and that only tribulations will not last long. हमारी एक निर्णय के द्वारा, Through our one decision, यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा, believing on Jesus, जो क्रूस पे मारा गया, who was crucified on the cross, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, who was buried and resurrected the third day. ना वो जीवन परमेश्वर के सामने अपना जीवन सौंप दो, And surrender your life in front of God. और वो क्रूस का जीवन अपना। And accept that godly life. अनुग्रह ही है जो उसे बदल सकता है। Grace is the only thing which will change. ना हमारे अच्छे काम, ना हमारे अच्छे शब्द, ना हमारा अच्छा जीवन,
Not our good works, not our good life, not our good words. वो अंतिम न्याय को बदल नहीं सकती। It will not change the last judgment. परमेश्वर न्यायी है, वो किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। God is a judging God, He will not do partiality. जो यहाँ पे उसे स्वीकार करेगा, परमेश्वर स्वर्ग में उसे स्वीकार करेगा। The one who will accept Him in this world, Jesus will accept Him in heaven. और यही हमारे लिए अनुग्रह है And this is grace. और हमारे मसीह जीवन के लिए संदेश है। And it's a message for our Christian life. यदि हम उस नरक की आग को, उस झील को सोचते हैं, And if we think about that lake of fire and hell, उन लोगों की भी चिंता करें and think about those people, और उनको भी परमेश्वर के प्रेम को बांटें and share His love, और उस परमेश्वर के जीवन को अपनाने में उनकी मदद करें and help them to receive Jesus' और life, कहीं न कहीं पे उन्हें जोड़ सके, and somewhere join them, ना जहाँ पे उनके लिए पास में कलीसिया मिल सके। where they might get some church around them. आज इस दुनिया में जितनी भी कलीसिया है, And in this world there are many churches. हर एक को यही एक संदेश है, For everyone there is one message. अपना व्यक्तिगत मसीह जीवन उस तरह से जियो Live your Christian life जो मसीह के उस अनंत जीवन में उसका उस हिस्सेदारी का आनंद उठा सके, which can be a partaker of Jesus' eternal joy. ना जहाँ पे हम उन व्यक्तियों को देख सके जिनको हमने यहाँ पे प्रचार किया, Where we can see the people whom we preached in this world. और जो मसीह जीवन दूसरों को छू पाया, And that Christian life which touched other person. ना वही परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा This only can become a reason of God's glory. और उनके लिए भी एक संदेश है। And for them also it's a message. जो परमेश्वर यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाते हैं, The ones who mock Jesus अविश्वास कर रहे हैं, and who are showing unbelief. फिर भी परमेश्वर धीरज रखता है Then too God is patient, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। that they might also receive salvation. ना एक विश्वास करना And once believing ना यीशु मसीह पे on Jesus, आपके जीवन को बदल देगा, it will change your life. उस नरक की झील को बदल देगा अनंत जीवन के हिस्से में। And it will change the lake of fire in an eternal life. ना बहुत आप उसको शांति से आनंद के जीवन को ग्रहण कर सकते हैं, And with peace you can accept that life, ना जो बहुतायत का जीवन है, which is an abundant life. ना यीशु मसीह आया इसलिए, And that's why Jesus came. ना यूहन्ना के 10 में कहता है, In John 10 it says, हम वो पंक्ति पढ़ते हैं we'll read, यूहन्ना के 10 में क्या बोलता है, जितने मुझसे पहले आए and the ones who came before me, ना वो सब चोर और डाकू, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। all were thieves, but the sheep didn't listen them. ना द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है वह उद्धार पाएगा। I am the door, if anyone enters by me, he will be saved, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, and will go in and out and find pasture, ना और चारा पाएगा। and find pasture. चोर केवल चोरी करने और मार डालने और नाश करने आता है। The thief does not come except to steal and to kill. मैं इसलिए आया हूँ कि मैं वो जीवन दे सकूँ जो बहुतायत का जीवन है। And I came to give that life which is an abundant life. ना अच्छा चरवा मैं हूँ, I am a good shepherd, और अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, and a good shepherd gives his life for his sheep. और उसने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। And he has given an abundant life. आपके उस अनंत को जो अनंत की झील है उसको बदल देगा, नरक की झील है उसे बदल देगा, To change the lake of fire, ना जहाँ पे परमेश्वर का न्याय है, where there is a judgment of God. उस न्याय का सामना हर एक को करना है। Everyone has to face that. एक जो विश्वास करता है यीशु मसीह पे, वो उसका न्याय का हिस्सेदार नहीं होगा। And the one who believes on Jesus will not be a partaker of that judgment. सिर्फ वो अनंत जीवन का हिस्सेदार होगा। He will only be a partaker of that eternal life. आमीन। Amen. हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं Father, we thank you इस जीवन को देने के लिए। for giving this life. हम आपके हाथों में सौंपते हैं, We surrender in your hands. आप मदद करना, सहायता करना। You help us and guide us. और प्रभु जी जो लोग इस दुनिया में कोरोना से और उन सारी स्थिति और हालातों से लड़ रहे हैं, And the people who are fighting against this pandemic, प्रभु उनकी मदद सहायता करना। you help them, Lord.
और प्रभु जी उनको उस सुसमाचार के लिए ऐसे मसीह लोगों को भेजना प्रभु जी। And for gospel, send some Christian people प्रभु जी हमें तैयार करना, and groom us, Lord. हमें मदद करना प्रभु जी, Help us, Lord, कि हम भी उन चीज़ों का प्रचार कर सके। that we might also preach those things. प्रभु जी हम मांगते हैं Lord, we ask आपकी सामर्थ, आपके तरीके your power and your style, और आपका सुसमाचार जो लोगों के जीवन को बदलेगा। and your gospel which will change people's life. हम चाहते हैं कि उस जीवन को जी सके We want to live that life, Lord, और आपकी महिमा कर सके, and glorify you, Lord. अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जिए। Not for us, but to live for God. यही हमारी प्रार्थना है This is our prayer. और मांगते हैं प्रभु जी And we ask, Lord, कि जो लोग पिता परमेश्वर उद्धार में नहीं है and the ones who are not in faith, उन पर अपना अनुग्रह बरसाना, and give your grace to them. जो इस वीडियो को देख रहे हैं And the ones who are seeing this video, सिर्फ अपने मन में ये विश्वास करें, just in your mind believe and believe. यीशु मैं आप पे विश्वास करना चाहता हूँ। Jesus, I want to believe on you. सिर्फ यही विश्वास, यीशु मैं आप पे विश्वास करना चाहता हूँ। Just believe that Jesus, I want to believe on you. यीशु मसीह का आनंद जीवन, उनका उद्धार आपके जीवन में आएगा, Jesus' eternal life will come in your life. क्योंकि उसके क्रूस पे लहू बहाने से सारे पापों की क्षमा मिली है। Because his flowing blood on the cross gave redemption from sin. वो सारे पाप धो डालेगा He will wash you from sin. और वो आपको मदद करेगा And it will help you एक सही और परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन जीने के लिए। to help you to live a correct and a worshipping life. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. सिर्फ ये कहना, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। Just say that Jesus, I believe in you. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं Lord, we come to you और मांगते हैं प्रभु जी, and we ask, Lord, हर एक पिता परमेश्वर परिवार को संभाले रखना। and keep every family safe. यदि कोई जॉब्स की तकलीफ से जा रहा है, If anyone is going through job crisis, उसके लिए वो जॉब मुहैया कराना and give a job available और मदद करना हर किसी की प्रभु जी। and help everyone, Lord, और हमें भी सहायता करना कि हम उनकी मदद कर सकें। and help us that we might help them. कोई बीमारी से जूझ रहा है प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई देना। If anyone is going through sickness, Lord, you give them हमारे healing कलीसिया के परिवारों को संभाले रखना, बच्चों को संभाले रखना। and keep our families and children safe. यीशु मसीह के नाम से आमेन, In Jesus' name, Amen. आमेन। आइए इस आराधना के गीत के साथ सभा को विश्राम दें। और अगर इस संदेश में से परमेश्वर ने आपसे कुछ बातें की हो तो हमें जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। किसके नाम है? Let's sing this song.